आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, क्योंकि ये जो है देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं वो समाज के अंदर कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें सामाजिक तौर पे लोगों के साथ साथ जो पर्यावरण है और जो ऐसी तमाम सोसाइटी से जुड़ी चीज़ें हैं उसमें सुधार आ सके। इसी के अंतर्गत दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक फंक्शन का आयोजन हुआ। इस फंक्शन के अंतर्गत कई कॉलेजेस और स्कूल के जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंतर्गत राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और प्लांटेशन, इस तरह के वृक्षारोपण जैसे कार्यों को किया गया। इस आयोजन में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ज़िले के एडीएम, कई एसडीएम व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे जो अपने विचार साझा करें और समाज के लिए कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इसकी भी जानकारी साझा की। देखिए। On behalf of the administration of the District Northeast, I extend a very, very warm welcome to all the student participants, the cadets of NCC, NSS, the officers from different departments of Government of Delhi, the officers and staff of the administration of Northeast District, my colleagues, ladies and gentlemen, today we have assembled here, as you are already aware, for a very noble cause. As you have already noticed and you are aware that from 2014 onwards, under the aegis of the current dispensation, we as a society, we as members of the administration, we have all taken a pledge that we would keep our surroundings. We have taken a pledge that we will keep our surroundings and our country clean and green. To that end, we have been working for the last 7 years. And let me tell you that cleaning is not a process which can be completed in one day or 1 month. Cleanliness is a state of mind. It's the state of our hearts. And if we really love this country, if we really love our motherland, as we all do, mere sloganeering and mere taking of pledges does not always work. It is through our actions that we have to show our love for our country. And to that end, now the government of India has decided that for this 1 month, starting today, we would be undertaking various coordinated efforts by combining the efforts of the government of India, the government of National Capital Territory of Delhi, the schools, colleges, and people from all walks of life. All of us, we have to come together and we have to basically pledge at least a few hours per day and make efforts to clean our surroundings. So we had a meeting yesterday wherein we actually briefed our district level committee members as to what actions we are going to take for this 1 month. And today we would share with you all the details of the program. Having said this, I would not extend my speech for too long. There are other distinguished members, other participants whom we would like to felicitate over here for their contribution. So with this many words, I extend a very warm welcome to all of you for having assembled here today in spite of the inclement weather. I wish that the energy, the enthusiasm, and the sincerity that you have shown, let it be translated into action for the next 1 month.
थैंक यू। जय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एडीएम ने सभी का धन्यवाद दिया और मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं बच्चों का मनोबल बढ़ाया। जानकारी देते हुए यह भी कहा कि यह प्रण केवल एक दिन या एक महीने से आसपास का सराउंड साफ नहीं होगा। हमें प्रतिदिन कुछ समय हमारे देश के लिए, समाज के लिए निकालना होगा और इसमें देश के युवाओं की अहम भूमिका सामने आएगी। तो देश के युवाओं और क्षेत्र के युवाओं को इसके लिए प्रेरित भी करना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही सभी ने एक ओथ ली और यह शपथ ली कि हम अपने आसपास और समाज को साफ रखेंगे। 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं गंदगी करूंगा एवं मेरे साथ ही एडीएम नॉर्थ ईस्ट ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि आने वाले समय के 1 महीने का शेड्यूल मीटिंग के दौरान उन्होंने तय किया है और उस शेड्यूल को एसडीएम द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत भी किया गया। We have prepared a month-long schedule of the activities that we will be undertaking for the next 1 month, and I have the pleasure of presenting it before you. I also request our SDMs to kindly hold it up so that it can be visible. एसडीएम यमुना विहार ने मौजूद सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद किया। साथ ही जिन छात्र छात्राओं ने राइटिंग कंपटीशन एवं लेख कंपटीशन में भाग लिया था उन सभी का धन्यवाद अदा किया। So that we all can strive and coordinate and achieve a clean India goal. I would also like to thank all the participants who have come here to participate in this inauguration program of Clean India, along with all the staff of the DM office team of the administrative branch, without whose effort this program would not have been a grand success. Thank you all. और अंत में एडीएम नॉर्थ ईस्ट ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्लान इन द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट इज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। हिंदी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने 30 दिन का एक कार्यक्रम हमने प्रिपेयर किया है और इसमें सिविल सोसाइटीज़ के सारे जितने मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल होंगे, स्टूडेंट्स शामिल होंगे और जो भी इंसान इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने एफर्ट से, श्रमदान से, उन सबको हम वेलकम करते हैं। और इसके लिए हमने 30 दिन का एक प्रोग्राम ऑलरेडी प्रिपेयर हमने किया है, आपके सामने हमने उसको अनवेलिंग भी किया है और उसी प्रोग्राम के तहत हम हर दिन कहीं ना कहीं करीबन मान लीजिए 30, 40, 50 वॉलंटियर्स, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके साथ हम श्रमदान करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को हम स्वच्छ बनाएंगे। सर्टिफिकेट भी दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया उसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अपनी युवा पीढ़ी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हम कुछ भी एफर्ट ले, अगर हम अपनी यंगर जनरेशन को अगर हम इंस्पायर नहीं कर पाते हैं तो हमारे कोई भी एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसी डायरेक्शन में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे डीएम मैडम की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि हम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को हम इनवाइट करेंगे, उनसे हम शपथ दिलवाएंगे उनको और उनको हम इंस्पायर करेंगे। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो बच्चे आए थे आज वो सेल्फ इंस्पायर्ड है, लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन ये है कि आज हम उनके साथ एक जगह पे बैठ के हमने अपने जो विचार है उनकी हमने आदान प्रदान की है और मैं तो ये कहूँगा कि ये अचीवमेंट हमारे लिए है जितना कि वो आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो क्लीन इंडिया मिशन की तरफ क्या संदेश देना चाहिए?
क्या बताना चाहिए? मैं सबको यही कहना चाहूँगा और ये अनुरोध करना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे जो भी रेसिडेंट्स हैं उनसे कि अपना घर स्वच्छ रखना ही एक एंड पॉइंट नहीं है। हमारे जो लोकेलिटी है, हमारे जो मोहल्ला है, हमारे जो रोड्स हैं, जो पार्क्स है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, उसको स्वच्छ रखे। और स्वच्छ रखने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप खुद कूड़ा ना फेंके कहीं पे। जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पे आप अपना जो भी घर का जो कूड़ा है वहीं पे फेंके। अगर हम में से हर इंसान इस हैबिट को हम अपने अंदर कल्टीवेट कर पाए कि हम कहीं पे गंदगी ना फैलाएं, तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जो एडीएम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने कैसे समाज के अंदर चीज़ें बदली जाएंगी और कैसे जो देश का युवा है उसको बढ़ चढ़ के समाज की जो कार्य हो रहे हैं समाज के अंदर, समाज को अच्छा, स्वस्थ और साफ बनाने के लिए उसमें बढ़ चढ़ के कैसे हिस्सा लेना चाहिए, कैसे युवाओं को इंस्पायर होना चाहिए, ये सारी तमाम जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। लेकिन यहाँ बहुत अधिक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस तरह के कुछ क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर, जो स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों के अलावा जो ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र हैं, जो ऐसे सोसाइटी हैं, लोकेलिटी हैं जहाँ पे इस तरह के युवा रहते हैं जिनको ये सोच नहीं उत्पन्न हो पा रही है, उन युवाओं को कैसे इसमें इंडल्ज किया जाए। क्योंकि कई ऐसे युवा हम देख रहे हैं जो क्राइम के रास्ते पे अग्रसर हैं, जो नशे के रास्ते पे अग्रसर हैं, तो कैसे उनको रोका जाए, उनकी जो वो अग्रसर उस पाथ पे हैं उस पाथ को चेंज किया जाए, इस पे भी विचार करना होगा। इस पे भी पूरी एक समीकरण बनाना होगा कि कैसे जो क्षेत्र के और समाज में जो इस तरह के युवा हैं उनको सही दिशा और दशा दी जाए। क्या है आपके विचार, आपकी राय हमसे आप कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।